ہم آپ کی خدمت میں سونا یوریا بنانے والے ادارے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی تیار کردہ فلم گندم کی کاشت پیش کر رہے ہیں۔ ایف ایف سی پاکستان میں یوریا بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے جو سالانہ تقریباً 30 لاکھ ٹن سونا یوریا بنا رہا ہے۔ ایف ایف سی اپنے سونا یوریا پرلٹ کے ساتھ ساتھ فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ کے تیار کردہ سونا یوریا گرینولر اور سونا ڈی اے پی کی ترسیل و تقسیم کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کھادوں کے متوازن استعمال کو فروغ دینے کے لیے درآمد کردہ ایف ایف سی ڈی اے پی، ایف ایف سی ایم او پی، ایف ایف سی ایس او پی، سونا زنک اور سونا بوران کھادیں بھی مہیا کر رہی ہے۔ اس طرح فوجی فرٹیلائزر کمپنی سالانہ تقریباً 40 لاکھ ٹن کھادیں اپنے 3700 سے زائد ڈیلروں کے ذریعے پورے ملک میں کاشتکاروں تک پہنچا رہی ہے۔ کاشتکاروں کو اصل اور معیاری کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کمپنی نے سونا ڈی اے پی، ایف ایف سی ڈی اے پی، ایف ایف سی ایم او پی اور ایف ایف سی ایس او پی کی بوریوں پر پہچان سٹیکر لگایا ہے تاکہ آپ کھادیں خریدتے وقت اصل کھاد کی تصدیق کر سکیں۔ ایف ایف سی اعلیٰ معیار کی کھادوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی پہنچا کر فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے 13 ریجنل دفاتر اور 5 فارم ایڈوائزری سینٹرز میں تعینات زرعی ماہرین کاشتکاروں کو زرعی توسیع، مٹی اور پانی کے مفت تجزیے کی سہولیات کے ساتھ ساتھ کھیتوں پر نمائشی پلاٹ لگا کر عملاً تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ میں ہر سال گندم کی فصل کاشت کرتا ہوں۔ پچھلے سال میں نے ایف ایف سی کے زرعی ماہرین کی سفارشات کے مطابق فصل کاشت کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری پیداوار میں 10 سے 12 من فی ایکڑ اضافہ ہوا۔ اگر باقی کاشتکار بھی ایف ایف سی کے زرعی ماہرین کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کریں گے تو ان کی پیداوار میں بھی یقینی اضافہ ہوگا۔ کاشتکار بھائیوں، خوردنی اجناس میں گندم سب سے اہم فصل ہے۔ پاکستان میں یہ فصل رقبے اور پیداوار کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ گزشتہ سال ہمارے ملک کی اوسط پیداوار 29 من فی ایکڑ رہی، جبکہ ہمارے اکثر ترقی پسند کاشتکار ملکی اوسط پیداوار سے 2 گنا زیادہ پیداوار حاصل کر رہے ہیں۔ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم کی پیداوار میں اضافہ بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم آپ کو ان جدید زرعی عوامل سے روشناس کرواتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر گندم کی فی ایکڑ پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے مرحلہ آتا ہے زمین کے انتخاب اور تیاری کا۔ بھاری میرا سے ہلکی میرا زمین جس میں نامیاتی مادہ مناسب مقدار میں موجود ہو گندم کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے زمین کی مناسب تیاری بہت ضروری ہے۔ بیج کے اگاؤ، کھاد اور پانی کی یکساں تقسیم کے لیے کھیت کو لیزر لینڈ لیولر سے ہموار کریں۔ زمین کی تیاری کے لیے 3 سے 4 مرتبہ ہل چلانے کے بعد سہاگے کی مدد سے کھیت کو بھربھرا کر لیں۔ کماد، کپاس، چاول اور مکئی کے بعد گندم کاشت کی جانے والی زمینوں میں روٹاویٹر چلائیں۔ اس سے نہ صرف مڈھوں میں چھپے ہوئے کیڑے مکوڑے مر جائیں گے بلکہ زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوگا۔ بارانی علاقوں میں بارشوں سے پہلے گہرا ہل ضرور چلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی زمین میں جذب ہو سکے۔ صحت مند اور ترقی یافتہ اقسام کے بیج کے استعمال سے پیداوار میں 10 سے 15% اضافہ ممکن ہے، لہذا گندم کی سفارش کردہ اقسام کا صحت مند اور صاف ستھرا بیج کاشت کریں۔ جو کاشتکار اپنے گھر کا بیج استعمال کرنا چاہیں وہ اس کو بوائی سے پہلے سیڈ گریڈر سے اچھی طرح صاف کروا لیں۔ اگر سیڈ گریڈر دستیاب نہ ہو تو بیج کی صفائی خود سے کر لیں۔ بوائی سے پہلے بیج کو کانگیاری، کرنال بنٹ اور اکھیڑا جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے زرعی ماہرین کا تجویز کردہ پھپھوندی کش زہر لگائیں تاکہ بیج پر موجود بیماری کے جرثومے ختم ہو جائیں۔ بیج کو زہر لگانے کے بعد ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔ کاشتکار بھائیوں، اپنے علاقے، موسم اور وقت کاشت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایف ایف سی کے زرعی ماہرین کے مشورے سے گندم کی اقسام منتخب کریں۔ اگر گندم زیادہ رقبے پر کاشت کرنی ہو تو 1 سے زائد اقسام کاشت کریں۔ آبپاش علاقوں میں گندم کی کاشت کا موزوں وقت 1 نومبر تا 20 نومبر ہے،
जबकि बारानी इलाकों में वत्तर को मद्देनजर रखते हुए बुआई 15 अक्टूबर से शुरू की जा सकती है। भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए गंदम की काश्त 20 नवंबर तक मुकम्मल कर लें और शराय बीज 50 किलोग्राम फी एकड़ रखें। पछेती काश्त की सूरत में शराय बीज में 1 किलोग्राम फी दिन के हिसाब से इजाफा करें, क्योंकि पछेती फसल में दर्जाए हरारत की कमी के बायस बीज का उगाव ताखीर से होता है। पौधा शगुफे कम बनाता है और सिट्टे छोटे रह जाते हैं, इसलिए शराय बीज बढ़ाने से बुनियादी शाखों में इजाफा होता है, जो पैदावार बढ़ाने में मददगार साबित होता है। पौधों के यकसा उगाव, भरपूर निशोनुमा और शगुफों की मतलूबा तादाद के लिए गंदम की बुआई बजरिया ड्रिल कतारों में करें, क्योंकि इस तरह पौधों को मुनासिब रोशनी, हवा और जगह मिलती है और वो बेहतर निशोनुमा पाते हैं। बीज की गहराई 1.5 से 2 इंच और कतारों का दरमियानी फासला 6 से 8 इंच रखें। पानी की कमी वाले इलाकों में गंदम की काश्त पटड़ियों पर करें। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी, बल्कि आपाश इलाकों में इस तरीके में कमाद वगैरह की मखलूत काश्त भी की जा सकती है। धान वाले इलाकों में बुआई बजरिया जीरो टिलेज ड्रिल या हैप्पी सीडर से करें। इससे जमीन की तैयारी के अखराजात में कमी भी होगी। कलराठी जमीनों में गंदम की काश्त गप छट के तरीके से करने की सिफारिश की जाती है। इस तरीके काश्त में हल्का पानी लगाने के बाद 4 से 6 घंटे पानी में भिगोए हुए बीज का छट्टा दें। मुनाफा बख्श पैदावार हासिल करने के लिए खादों का मुतनासिब इस्तेमाल बहुत जरूरी है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की कायम करदा मिट्टी और पानी के तज्जिए की जदीद कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरियों में तज्जिया करदा 5 लाख से जायद नमूनों के मुताबिक हमारी तकरीबन 100% जमीनों में नाइट्रोजन, 93% से जायद जमीनों में फास्फोरस और 50% से जायद जमीनों में पोटाश की कमी वाक़ई हो चुकी है। अज्जाए सगीरा के तज्जिया किए गए नमूना जात के मुताबिक 85% जमीनों में जिंक, जबकि 60% जमीनों में बोरान की कमी है। गंदम में तज्जिया एराजी के मुताबिक खादों के मुतवाजन इस्तेमाल के लिए आप भी अपनी जमीन का तज्जिया करवाने के लिए करीबी सोना डीलर, FFC हेल्पलाइन 0800 00 332 या फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के करीबी ज़राई माहिर से राब्ता करें। मैं हर साल गंदम और कपास की फसल काश्त करता हूँ। इस दफ़ा मैंने कपास की फसल काश्त करने से पहले FFC की लेबॉरेटरी से अपनी ज़मीन का तज्जिया करवाया और उनकी सिफारिशात के मुताबिक खादों का इस्तेमाल किया तो पैदावार में खातर ख्वाह इजाफा हुआ। अब मैं गंदम की फसल काश्त करने से पहले भी अपनी ज़मीन का तज्जिया करवा रहा हूँ, ताकि FFC की सिफारिशात के मुताबिक खादों का मुतवाज़न और मुतनासिब इस्तेमाल करके बेहतर पैदावार हासिल कर सकूं। गंदम की फसल के लिए खादों की उमूमी सिफारिशात ये हैं। आपाश इलाकों की दरमियानी जरखेज से कमजोर जमीन में 1.5 से 2 बोरी सोना DAP, पौनी बोरी FFC MOP या 1 बोरी FFC SOP फी एकड़ काश्त के वक्त और 1.5 से 2 बोरी सोना यूरिया फी एकड़ पहले और दूसरे पानी के साथ डालें। बारानी जमीनों में कम बारिश वाले इलाकों में 1 बोरी सोना DAP, पौनी बोरी सोना यूरिया और आधी बोरी FFC MOP या FFC SOP फी एकड़ बुआई से पहले डालें। औसत और ज्यादा बारिश वाले इलाकों में 2 बोरी सोना DAP, 1.25 बोरी सोना यूरिया और आधी बोरी FFC MOP या आधी बोरी FFC SOP फी एकड़ बुआई से पहले डालें। याद रखें, बारानी इलाकों में गोब से पहले बारिश होने की सूरत में फसल की हालत को मद्देनजर रखते हुए आधी से 1 बोरी सोना यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। काश्तकार भाइयों, गंदम की भरपूर पैदावार के लिए जिंक और बोरान का इस्तेमाल निहायत जरूरी है। बोरान के इस्तेमाल से दानों की मिकदार और वजन में बेहतरी आने से पैदावार में खातिर खा इजाफा होता है। इसी तरह जिंक के इस्तेमाल से जड़ों की निशोनुमा बेहतर होती है, शाखें और कोंपलें ज्यादा बनती हैं। बोरान और जिंक की जरूरत पूरी करने के लिए 3 किलोग्राम सोना बोरान और 6 किलोग्राम सोना जिंक बवक्ते काश्त या पहली आबपाशी के साथ इस्तेमाल करें। काश्तकार अगर किसी वजह से DAP का इस्तेमाल बुआई पर न कर सकें
تو सोना DAP को पानी में हल करके बजरिया आबपाशी इस्तेमाल करने से भी बहुत अच्छे नताइज हासिल हुए हैं। क्योंकि गंदम की जड़ें ज्यादातर सतह जमीन के करीब कम गहराई से खुराक हासिल करती हैं, इसलिए पहले पानी पर दी गई DAP को भी बेहतर तौर पर जज्ब कर लेती हैं और पैदावार में खातिर खा इजाफा होता है। मयारी और बेहतर पैदावार के लिए 3 अहम मराहिल पर आबपाशी बहुत जरूरी है। पहला पानी गंदम की बुआई के 18 से 22 दिन बाद शगुफे निकलते वक्त दें, लेकिन धान वाली जमीन या सेम ज़दा रकबे पर काश्त की जाने वाली गंदम को बुआई के 30 से 35 दिन बाद पहली आबपाशी करें। दूसरा पानी गोब के वक्त, तीसरा पानी दाना बनने की इब्तिदा यानी दूधिया हालत पर दें। अगर मौसम मुतवातर खुश्क रहे तो एक जायद पानी दूसरे और तीसरे पानी के दरमियानी वक्फे में लगाया जा सकता है। नीज काश्तकार जमीन और मौसमी हालत को मद्देनजर रखते हुए पानी के औकात में तब्दीली कर सकते हैं। फसल में उगने वाली जड़ी बूटियां और खुदरो पौधे रोशनी, हवा, खादें और जमीन में मौजूद अहम अज्जाए खुराक मुताल्लिका फसल को हस्बे जरूरत मुयस्सर नहीं आने देते, जिससे पैदावार मुतासिर होती है। जड़ी बूटियों से गंदम की पैदावार में 14 से 40% तक कमी हो सकती है। गंदम की फसल में 2 किस्म की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां और नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां। इन जड़ी बूटियों का कीमियाई जहरों के जरिए मौसर तरीके से तदारुक किया जा सकता है। जहरों के इंतखाब के लिए आप FFC हेल्पलाइन 0800 00 332 पर मौजूद ज़राई माहिर से अपने खेत में मौजूद जड़ी बूटियों के बारे में मशवरा करके उनकी इक़साम और शिद्दत के मुताबिक मुनासिब कीमियाई जहर का स्प्रे करें। गंदम की फसल पर मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियां मसलन खुली और बरगी कांगियारी, अखेड़ा, जर्द व भूरी कुंगी और करनाल बंट वगैरह हमलावर होती हैं। बीमारियों से बचाव के लिए इनके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली तरक्की दादा इक़साम काश्त करें और बुआई से पहले बीज को तजवीज़ करदा फफूंदी कुछ जहर लगाकर काश्त करें। जब फसल अच्छी तरह पक जाए तो दाना गिरने से पहले ही इसकी कटाई का अमल शुरू कर दें। भरियां बांधकर इस तरह रखें कि सिट्टों का रुख ऊपर की तरफ हो और खुश्क होने पर गहाई करें। कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई और गहाई करने से पैदावार 5 से 7 मन फी एकड़ ज्यादा होती है, क्योंकि हाथ से कटाई और गहाई के दौरान नुकसान ज्यादा होता है। फसल की कटाई के दौरान मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहें। अगर बारिश का इम्कान हो तो कटाई रोक लें। अगर हमारे काश्तकार इन सिफारिशात पर अमल करें तो यकीनन उनकी पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा और वो मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। काश्तकार भाइयों, गंदम की कटाई के बाद अक्सर काश्तकार अगली फसल के लिए जमीन जल्द तैयार करने की गर्ज से उसकी बाकियात को आग लगा देते हैं, जिससे न सिर्फ जमीन में मौजूद नामियाती मादा जाया हो जाता है बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा होता है। काश्तकार अगर कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद भूसा बनाने वाली मशीन व्हीट स्ट्रॉ चॉपर का इस्तेमाल करें तो भूसे की जरूरत भी पूरी होगी और माहौल भी आलूदगी से पाक रहेगा। कंबाइन हार्वेस्टर से गंदम की कटाई के बाद काश्तकारों को 2 बड़े मसले आते हैं। एक तो उनकी तूड़ी जाया हो जाती है और दूसरा नाड़ को आग लगाने की वजह से माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है और जमीन में मौजूद नामियाती मादा खत्म हो जाता है। जब से हमने व्हीट स्ट्रॉ चॉपर इस्तेमाल करना शुरू किया है, हमें तूड़ी भी बच जाती है और जमीन की जरखेजी भी बरकरार रहती है। काश्तकार भाइयों, आप हमारी बताई गई सिफारिशात पर अमल करके गंदम की पैदावार में खातिर खा इजाफा कर सकते हैं।